اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس ویمین الغموس رواہ البخاری وفی روایت انس رضی اللہ عنہ وشہادت الزور بدل الیمین الغموس متفق علیہ۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جان کا قتل کرنا، جھوٹی قسم، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اسے بخاری نے روایت فرمایا، اور بخاری اور مسلم ہی کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی روایت میں بجائے جھوٹی قسم کے جھوٹی گواہی بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سماعت فرمائی، ہم نے پچھلی مرتبہ بھی اس کے کچھ نکات کو بیان کیا تھا، یعنی شرک اور والدین کی نافرمانی، اس کو ہم نے پچھلی مرتبہ بیان کر دیا تھا، اور آج ہم جان کا ناحق قتل، جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ پچھلی مرتبہ یہ چیز کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، اس میں شرک کی رائج قسمیں میں نے بیان کر دی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جس میں میرے دوستو تجسیم، حلول، اتحاد اور تثلیث کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ پھر والدین کی نافرمانی کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آج انشاءاللہ کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی گناہ کبائر گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر شرک کے بعد والدین کی نافرمانی، اور اس کے بعد تیسرا جو گناہ بیان فرمایا وہ کسی جان کا قتل ہے۔ یاد رکھیں، فرمایا گیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے گویا کہ انسانیت کا قتل کیا، یعنی گویا کہ اس نے جتنے زندہ لوگ تھے اس وقت سب کا قتل کر دیا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ جان کے قتل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلمان کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح سے کافر ذمی، اس کو کہتے ہیں کافر ذمی، اس کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کافر ذمی کے بارے میں ذرا سمجھ لیں۔ کافر ذمی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے، میرے دوستو، مسلمان گورنمنٹ کے ذمہ کرم پر آ گیا، جس نے جزیہ پیش کیا، اور وہ ہمیشہ جزیہ پابندی سے ادا کرتا ہے، لہٰذا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کافر کی، جو اگرچہ غیر مسلم تو ہے لیکن اس کی جان کی حفاظت بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، لہٰذا ذمی کافر کو قتل کرنا، اس کو کہتے ہیں ذمی کافر، یعنی جو ذمہ ہے اسلامی حکومت کا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن مسلمان کو قتل کرنا اس درجے میں بڑا ہوا گناہ کبیرہ ہے۔
उसके बाद में फिर काफर जिम्मी के बाद फिर उस कत्ल का मर्तबा है कि जो काफर हो लेकिन मैदाने जंग में नहीं उतरा बल्कि अमन से अपने इलाके में रह रहा है या मुसलमानों के इलाके में, मुसलमानों के इलाकों में था तो जिम्मी कहलाएगा। लेकिन अगर दारुल हर्ब, अब ये इस्तिलाह जो है ना दारुस्सलाम और दारुल हर्ब, दारुस्सलाम और दारुल हर्ब की इस्तिलाह, यानी दारुस्सलाम जो है ना उसे कहते हैं जो इस्लामी हुकूमत का इलाका हो, मुसलमानों का मुल्क जहां मुसलमानों की हुकूमत कायम हो उसे दारुस्सलाम कहा जाता है। उसमें रहने वाला काफर जिम्मी काफर होता है। और जो दारुल हर्ब है यानी काफरों का मुल्क, दारुल हर्ब कहते हैं काफरों के मुल्क को। लेकिन अगर काफरों के मुल्क के अंदर भी वो आपसे जंग नहीं करते, आपको तंग और परेशान भी नहीं करते, तो लिहाजा ऐसे कुफ्फार को जो अमन के साथ अपने इलाकों में या घरों में रह रहे हों और इस्लाम के लिए किसी किस्म के खतरे का बाइस नहीं बनते हों, उनको कत्ल करना भी गुनाह कबीरा है। ऐसे लोग यानी अब तीन किस्म के लोग हो गए, एक हो गए मुसलमान, दूसरा हो गए वो काफर जो जिम्मी हैं यानी इस्लामी हुकूमत के जिम्मे पर हैं, जिजिया देने वाले, और तीसरी किस्म के वो जो जिम्मी भी नहीं, दारुल हर्ब में रहते हैं, काफरों के मुल्क में काफर रहते हैं। इन सब को ही कत्ल करना ये गुनाह कबीरा है। लेकिन मुसलमान को कत्ल करना, चूंकि किसी नेक को ईमानदार को कत्ल किया, लिहाजा ये सारे ही गुनाह कबीरा हैं, लेकिन गुनाह कबीरा में उसका दर्जा कबीरा लिहाज से बढ़ा हुआ है गुनाह के लिहाज से। तो अब काफर जिम्मी भी गुनाह कबीरा, वो काफर भी जो पुरअमन रहना चाहता है, आपको इस्लामी हुकूमत से लड़ाई नहीं करता, जंग नहीं करता, उसको कत्ल करना भी गुनाह कबीरा है। अब चूंकि ऐसों का बारे में बयान कर रहा हूं जिनको कत्ल करना गुनाह कबीरा है, तो साथ उनको भी बयान कर जाऊं कि जिनको कत्ल करना गुनाह नहीं बल्कि सवाब है, उसको भी इसी ज़िमन में बयान कर जाऊं। वो ऐसे लोग हैं कि ऐसे कुफ्फारों की फौज, काफरों की फौज जो जंग के लिए मैदान में उतर आई है, ऐसे काफरों की फौज जो जंग के लिए मैदान में उतर आई है, या ऐसे कुफ्फार जिन्होंने मुसलमान मुल्क पर कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद अब वो अपने फौजियों को वहां पर उतार चुके हैं और उनके फौजी मुसलमान मुल्क में, मुसलमान इलाके पर काबिज की हैसियत से उस इलाके में मौजूद हैं। तो लिहाजा जिन काफर मुल्कों के फौजी मुसलमान मुल्क के अंदर काबिज की हैसियत से मौजूद होंगे, तो उन फौजियों को कत्ल करना हरगिज गुनाह नहीं बल्कि कारे सवाब है, इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों के मुल्क पर कब्जा किया और मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। अगर आप इस दौर में उनकी मिसाल पूछना चाहें तो मैं मिसाल दूंगा इसराइल के यहूदी। ये वो काफर हैं जिन्होंने नाजायज तौर पर फलस्तीन के सरजमीन पर अपना नाजायज मुल्क, नाजायज रियासत इसराइल के नाम से बनाई है। तो लिहाजा उनके मुसल्ला फौजी वो अगरचे गजा में मौजूद हों, वो अगरचे दूसरी फलस्तीन के इलाकों में मौजूद हों, और वो अगरचे फलस्तीन के उस इलाके में हों जिसका नाम उन्होंने इसराइल नाजायज तौर पर रख लिया है, तो वो कहीं भी हों, लिहाजा उनको मारना, कत्ल करना ये फलस्तीनियों के लिए बहुत बड़े अजर सवाब का बाइस है, हरगिज भी गुनाह नहीं है। और आप देखिए वो जो इस्लामी मुजाहिदीन हैं वो कभी भी ऐसे यहूदी मर्द, औरतों और बच्चों को तो कत्ल करना वैसे ही जायज नहीं है, औरतों को भी कत्ल करना जायज नहीं है। ऐसे मर्द और औरतें जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं और हैं वो इसराइली, अगरचे वो नाजायज तौर पर रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों का तकवा आप देखिए कि वो नाजायज रहने के बावजूद जो हथियार नहीं उठा रहे
उनको वो फलस्तीनी मुजाहिद कुछ नहीं कहते, बल्कि उनकी हिफाजत भी करते हैं। अगर वो किसी तरह इनके कब्जे में आ जाएं तो जैसा खाना खुद खाते हैं उससे अच्छा खाना उनको कोशिश करके खिलाते हैं। और कितने ही वाकयात ऐसे हुए कि जब इसराइल में मुजाहिदीन उतरे तो उन्होंने वहां पर औरतों और बच्चों की हिफाजत की और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये है इस्लाम का हुस्न, ये है इस्लाम की नफासत, ये है इस्लाम की दियानतदारी। और मुजाहिद हमेशा अल्लाह से डरने वाला होता है, शरीयत पर अमल करने वाला होता है। आप हमेशा याद रखें, अब पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूं कि ये लोग जो उन इलाकों में उतरे उन्होंने किस किस तरह से औरतों की, बच्चों की और उन मर्दों की भी हिफाजत की और उन्हें कुछ ना कहा जो हथियार बंद नहीं थे, यानी उन्होंने हथियार नहीं उठाए थे, सिर्फ इसराइल के फौजियों को निशाना बनाते हैं। तो कितना प्यारा उसूल है मेरे दोस्तों इस इस्लाम का। और वो मुजाहिदीन कितने प्यारे हैं जो सरासर अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब के अहकाम के मुताबिक जंग करते हैं। इस वक्त की अजीम तरीन जंग फलस्तीन की जंग है, फलस्तीन की आजादी की जंग है, अजीम तरीन जंग किबला अव्वल की जंग है, अजीम तरीन जंग किबला अव्वल की आजादी की जंग है। और उसमें शहीद होने वाले इस वक्त के कबीर शुहदा हैं, यानी जितने भी दुनिया में मुजाहिदीन शहीद होते हैं उनमें अजर में सबसे बढ़े हुए वो हैं जो गज्जा में शहीद होते हैं, जो फलस्तीन में शहीद होते हैं, जो किबला अव्वल की आजादी की जंग लड़ते हुए शहीद होते हैं। ये शोहदा की बेहतरीन किस्म है और सबसे आला किस्म है। और ये गाजियों की बेहतरीन किस्म है जिनको अल्लाह ने जिंदगी बख्शी हुई है और वो जिहाद कर रहे हैं। वो बेहतरीन दुनिया के गाजी हैं और सबसे अजीम अजर पाने वाले गाजी हैं। तो मेरे दोस्तों, अब वो औरतों और बच्चों को नहीं, बल्कि उन मर्दों को भी नहीं जो सिविल लोग हैं, बल्कि किन से जंग कर रहे हैं? इसराइल के फौजियों से, इसराइल के फौजियों से। तो उन्हें ये उसूल मालूम है कि ना हक किसी जान को कत्ल करना यह गुनाह कबीरा है और ना हक एक इंसान को कत्ल कर देना पूरी इंसानियत को कत्ल करना है। तो याद रखें, ये हुस्न सिर्फ इस्लाम में मौजूद है, वगरना अगर इस हुस्न की कोई झलक यहूदियत में मौजूद होती तो आज इसराइल का, फलस्तीन का ये हाल ना होता जो इसराइलियों ने किया है। गजा के अंदर आप देख रहे हैं कैसे कैसे मजालिम, पानी बंद करना, बच्चों को खास तौर पर मारना इसलिए कि ये बड़े होकर ईमानदार हैं, ये बड़े होकर ये इस्लाम के मुजाहिद बनेंगे, ये यहूदियत के खिलाफ खड़े होंगे, लिहाजा बच्चों को बचपन में ही मार रहे हैं। औरतों को इसलिए मार रहे हैं कि ये औरतें अगर जो है वो शहीद हो जाएंगी तो ना औरतें होंगी ना बच्चे पैदा होंगे। मर्दों को इसलिए मार रहे हैं कि ये वो नौजवान कुव्वत है जो इसराइलियों से, कुफ्फार से टकरा रही है। तो मेरे दोस्तों, उधर से देखें कि जुल्म की, मेरे दोस्तों, कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और इधर से देखें इंसाफ को कैसे रखा जा रहा है कि एक जान को भी ना हक कत्ल नहीं किया जाता। इस्लामी मुजाहिदों का मामला आप देख लें तो ये इस्लाम का हुस्न है। उन्हें हदीस का बखूबी मालूम है कि जिसने एक नाहक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो मेरे दोस्तों, ऐसे हरबी काफर उसको कहते हैं जो यानी कि आलाते जंग से लैस होकर मैदान में उतर आए, उनको कहते हैं। तो ऐसे कुफ्फार को जो जंग में मुसलमानों के मुकाबले पर आए उनको मारना ना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि कारे सवाब है और एक मेरे दोस्तों कबीर सवाब का, बड़े सवाब का बाइस है, बहुत बड़ा सवाब है। ठीक है ना, मैंने इसमें बता दिया, इस्लाम ने खरा खोटा सब अलग अलग करके दिखा दिया है
ٹھیک ہے نا. اور ان کا قتل بھی صرف اس لیے جائز رکھا ہے کہ اگر آپ لوگ ان کو قتل نہیں کریں گے، جو مسلمان مجاہدین جنگ میں موجود ہیں وہ ان کافروں کو قتل نہیں کریں گے جو جنگ لڑ رہے ہیں، تو بالآخر وہ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے، ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور ان کی آبرو ریزی کریں گے. تو اس لیے میرے دوستو ان کا قتل کرنا بالکل صحیح، کار ثواب اور جائز ہے. پھر دوسرے ایسے لوگ جو اسلامی سلطنت میں ہوں اور ہمہ قسم کی گستاخیاں کرتے ہوں، تو ان کو قتل کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کو قتل کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. یعنی اگر کوئی ملحد جو ہے مطلب کہ میرے دوستو یعنی کہ اسلام لا کر پھر گیا، مرتد ہو گیا، تو اب یہ بادشاہ اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے 3 دن اسلام کی تلقین کرے، اور اگر وہ اسلام نہیں لاتا، دیکھیں کتنا رحم ہے کہ 3 دن اسلام کی تلقین کرنا ضروری ہے، اور اگر پھر بھی وہ اسلام نہیں لاتا تو اب اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری وہ اسلامی حکومت کی ہے. اسی طرح سے کعبۃ اللہ کی توہین کرنے والے، ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے. اسی طرح سے گستاخی کرنے والے، ناموس رسالت کی، ختم نبوت کی خلاف ورزی کرنے والے، اس میں بھی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. اسلامی حکومت، بادشاہ اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو قتل کر دے، ان کے جرم کا بدلہ خود دے، ان کے جرم کی سزا ان کو خود دے، تاکہ عوام میں اشتعال پیدا نہ ہو. یہاں پر عوام میں اشتعال پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سزائیں نہیں ملتی. تو اس لیے یہ بیسک طور پہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے. تو اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ جان کا قتل، کن لوگوں کا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور کون سے کافر وہ جو ہتھیار لے کر میدان جنگ میں اتر آئے، ان کو قتل کرنا صرف گناہ نہیں بلکہ کار ثواب ہے. تو قتل کے بارے میں نے یہاں پر بیان کر دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا وَقَتَلَ النَّفْسِ، اس کے بعد میں پھر فرمایا وَيَمِينُ الْغَمُوسِ، فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا یہ بھی بڑا گناہ ہے. جھوٹی قسم کھانا یعنی کسی چیز کے بارے میں معلوم ہے اور قسم پر معاملہ آ گیا، تو اب کوئی انسان جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا لے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. جیسے پچھلے گناہ تھے اسی طرح گناہ کبیرہ کی لسٹ میں جھوٹی قسم بھی شامل ہے. یہاں پر غور کرنے کی ضرورت یہ ہے، جھوٹی قسم کے بارے میں آپ سارے جانتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ جو قسم جھوٹی کھائی جائے نا، اس کا گناہ ہے، اور گناہ بھی کبیرہ ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مطلقاً گناہ ہے، لہٰذا اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہے. جھوٹی قسم جس نے کھا لی ہو اس کا توبہ کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے نا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک حدیث میں وَيَمِينُ الْغَمُوسُ، یعنی اس کو غموس کا نام دیا. غموس پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عربی میں غموس اس کو کہتے ہیں جو کسی کو ڈبو دے. تو اب یہ جو جھوٹی قسم ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں انسان کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ حضرت صاحب یہ جو جھوٹی قسم ہے، جس نے کھا لیا تو اس نے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، لیکن ایسا کیا ہے کہ بھئی جھوٹی قسم کھائی تو وہ انسان گناہوں میں ڈوب جائے گا؟ درود پاک. تو یاد رکھیں کہ جھوٹی قسم بذات خود تو ایک ہی گناہ ہے اور ہے بھی گناہ کبیرہ جیسے میں نے بتایا، لیکن یہ جھوٹی قسم جو ہے دوسری گناہوں کے اندر انسان کو ڈبو دیتی ہے. اس کو آپ سمجھ لیں ایک دوسری حدیث سے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تھا اور اس نے حاضر ہو کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، ہمہ قسم کے گناہ کرتا ہوں، اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
सारे गुनाहों से बचना मेरे लिए बड़ा मुश्किल अमर है, मुझे कोई एक गुनाह बता दें जिससे मैं अपने आप को बचा लूं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, झूठ ना बोला करो, झूठ ना बोला करो। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठ के गुनाह से उसको मना फरमा दिया, तो जब वो चला गया तो उसने जो है मतलब उसके दिल में आया कि मैं जो है वो चोरी करूं, चोरी का इरादा बना। फिर उसने कहा जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया तो फिर चोरी का इकरार तो करना पड़ेगा, क्योंकि झूठ तो नहीं ना बोल सकता, झूठ का तो मैंने वादा कर लिया कि मैंने नहीं बोलना। तो इस तरह से वो बंदा चोरी से रुक गया। फिर शराब का ख्याल आया तो इसी तरह से शराब से रुक गया, इसी तरह से वो गुनाह से रुक गया, इसी तरह जिना से रुक गया। सारे गुनाहों से उसको किस चीज ने निजात दे दी? झूठ के ना बोलने ने। तो दूसरी हदीस में यह भी फरमाया गया कि ये जो झूठ है ये गुनाहों की जड़ है। तीसरी हदीस के अंदर यह भी फरमाया गया कि अस्सिद्को युंजी वल किस्बा युहलिक, फरमाया सच निजात बख्शता है और झूठ इंसान को हलाकत में डालता है। तो पता लगा झूठ हलाकत भी है, झूठ तबाही भी है, झूठ सारे गुनाहों की बुनियाद भी है। सारी हदीसों को हम इकट्ठा कर लें तो यहां पर वो गवाही कौन सी है, वो कसम कौन सी है? झूठी कसम। तो चूंकि झूठी कसम है तो लिहाजा ये झूठी कसम भी झूठ ही की एक किस्म है, झूठ ही की एक किस्म है। तो लिहाजा जो झूठ के मुज़िरात हैं वही झूठी कसम के भी हैं। तो इस वजह से जो इंसान झूठी कसम एक मर्तबा खाएगा, फिर हर मामले में बचने के लिए, हर मामले में बचने के लिए दूसरों के हुकूक गसब करके फिर सच्चा बनने के लिए इंसान झूठी कसम खाएगा, ये उसकी आदत बन जाएगी। जब उसकी आदत बन जाएगी तो फरमाया व यमीनुल गमूसु, ये एक ऐसी चीज होगी जो उसको गुनाहों में डबो देगी। गुमूस अरबी में ऐसी चीज को कहा जाता है जो किसी को डबो दे, कोई ऐसी चीज जो किसी को डबो दे उसको कहते हैं। तो लिहाजा गुमूस का नाम हुजूर ने दिया तो पता लगा ये झूठी कसम इंसान को गुनाहों में डबोने वाली है। जो इंसान झूठी कसम खाएगा वो हर तरह के गुनाहों में, लोगों के हुकूक गसब करने में कसरत के साथ मुब्तला हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए इसको गुमूस का नाम दिया। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फरमाया गया कि झूठी कसम ये बड़े गुनाह हैं। दूसरी अगली चीज जो है यहां पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर, एक तो ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, लेकिन ये रिवायत जो है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर सहाबी से रिवायत फरमाई गई है। तो इनकी रिवायत के अंदर तो यहीं तक है, और ये भी बुखारी में, ये बुखारी शरीफ वालों ने रिवायत की, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, और मिशकात शरीफ में भी आई। लेकिन बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है, लेकिन इसमें बजाय यमीनुल गमूसू के बजाय, यानी झूठी कसम के बजाय, इसमें व रिवायतल अनसी, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो रिवायत फरमाई वहां पर लफ्ज तब्दील है, वहां पर है शहादतुज़ ज़ूर बदल अल यमीन अल गमूसी, यानी यमीन गमूस के बदल लफ्ज यहां पर मौजूद किया, इसके बजाय वो लफ्ज है शहादतुज़ ज़ूर। यानी फरमाया कि झूठी कसम का जिक्र नहीं बल्कि झूठी कसम का नहीं बल्कि झूठी गवाही का जिक्र है। अगर देखा जाए तो फी नफ्से ही दोनों ही झूठ हैं, तो लिहाजा झूठी गवाही ये झूठ ही की एक किस्म है और झूठी कसम ये गवाही की एक दूसरी किस्म है। झूठी गवाही ये भी झूठ की एक दूसरी किस्म है। तो लिहाजा दोनों में चूंकि झूठ पाया जाता और झूठ ही की किस्म है, तो लिहाजा एक लिहाज से तो दोनों ही गुमूस कहलाएंगे, दोनों ही गुमूस कहलाएंगे कि दोनों ही गुनाह में डबोने वाले हैं। लेकिन बिलखुसूस झूठी कसम का जो जिक्र फरमाया उसको शहादतुज़-ज़ूर के नाम से फरमाया। अब याद रखें कि जिस तरह से झूठी गवाही का जो फरमाया शहादतुज़-ज़ूर के नाम से फरमाया, जिस तरह झूठी कसम है ना गुनाहों में डुबोने वाली, इसी तरह झूठी गवाही भी ये ना सिर्फ गुनाहों में डुबोने वाली है बल्कि झूठी गवाही माशरे को भी तबाह और बर्बाद कर देती है। झूठी गवाही माशरे को भी तबाह और बर्बाद कर देती है। आज अगर मुल्क पाकिस्तान में देखा जाए,
हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, कभी खुदारा मुल्क को गाली ना देना। ये वो मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया था। इस खित्ते को हासिल करने के लिए लाखों जानों ने जामे शहादत नोश किया था। तो कभी पाकिस्तान को गालियां ना दिया करें, यह भी गुनाह है अपने मुल्क को गालियां देना। हां, ये याद रखें, ये मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त जो निजाम इसमें चल रहा है वो निजाम बहुत खराब है। अगर कोई उस निजाम को बुरा कहता है तो ये सरासर हक बात करता है और बिल्कुल भी गुनाह नहीं। लेकिन अपने मुल्क को गाली देना या उसको बुरा कहना यह बहुत बुरी बात है। लिहाजा पाकिस्तान को बुरा ना कहा करें, जो निजाम इसमें चल रहा है वो निजाम बुरा है। यहां तक भी बात है, चूंकि यह निजाम जमहूरियत का है तो उलमा ने इसको निजाम कुफर भी कहा है। ठीक है ना, जमहूरियत का जो निजाम है, और वक्त ने साबित किया है कि इसकी बहुत सारी खराबियां हैं। इसकी एक खराबी जो यहां पर जिक्र हुई है वो क्या है, आज देख लें कि पाकिस्तान की अदालतें झूठे गवाहों से भरी हुई हैं। पाकिस्तान की कचहरियां झूठे गवाहों से भरी हुई हैं, झूठ बोलने वाले गवाहियां देने वाले हैं। अच्छा भला सच्चा मुकदमा भी हो तो उसमें उसको इस तरीके से गड़मड़ किया जाता है, पता ही नहीं चलता भाई वो सच्चा है या झूठा है, झूठ उसमें मिक्स कर दिया जाता है। और फिर गवाह भी झूठी गवाहियां देते हैं, जो कि गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा जो इस हदीस में जिक्र हुए हैं उनमें सबसे आखिरी जो फरमाया गया वो झूठी गवाही है। तो अब ये पाकिस्तान की कचहरियां झूठे गवाहों से भरी हुई हैं, और कितना नुकसान होता है, मुआशरा तबाह हो जाता है झूठी गवाही से। इसलिए कि जब गवाही झूठी दी जाएगी अदालतों में तो जिसको इंसाफ मिलना चाहिए उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, और जब उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो उनमें से बाज लोग मजबूर होकर जबरदस्ती अपने हाथ के जरिए इंसाफ करने की कोशिश करेंगे, और ये उनका मनसब है नहीं। ये था अदालत का मनसब, इंसाफ मुहैया करना था हुकूमत का काम। लिहाजा अब हुकूमत का काम ले लिया उसने अपने हाथ में, और अब चूंकि उसके रिश्तेदार को कत्ल किया गया था, लिहाजा झूठी गवाहियों की वजह से वो मुकदमा फारिग हो गया। अब वो खुद इंसाफ करने खड़ा हो जाएगा। जब वो खुद इंसाफ करने खड़ा होगा मेरे दोस्तों, तो फिर एक दुश्मनी शुरू हो जाएगी जो अब नस्ल दर नस्ल चलेगी। उन्होंने इनके वालों को मार दिया था, इसको इंसाफ ना मिला, और इसने उनके वाले को मार दिया। अब कल को फिर उनके वाले इनके वालों को मारेंगे, और फिर इनके वाले उनके वालों को मारेंगे। और कई जगह पर ऐसा भी होता है कि एक कत्ल के बदले दो दो तीन तीन कत्ल होते हैं, क्योंकि जब कानून अपने हाथ में अवाम ले ले, कोई भी शख्स जैद बकर कानून को अपने हाथ में ले ले और इंसाफ भी खुद करने लगे, जबकि ये दोनों मनसब थे इस्लामी हुकूमत के, ये दोनों मनसब थे, इंसाफ मुहैया करना काम था अदालत का, और चूंकि उसमें झूठी गवाही लगी लिहाजा अदालत से इंसाफ ना मिला तो अब क्या हुआ कि अब तबाही शुरू हो गई। इसी तरह से मेरे दोस्तों, एक शख्स ने चोरी नहीं की थी, वो बेगुनाह था, झूठी गवाही वाले ने, शहादत ज़ूर वाले ने उसको चोर करार दिलवा दिया। लिहाजा अब वो जब चोर करार दिल गया और वो जेल में चला गया, तो पीछे चोर तो नहीं था कि उसके पास इतना माल दौलत हो कि बच्चे उस माले हराम से गुजारा करेंगे। वो तो एक हलाल कमाने वाला बंदा था। गलत पर्चा हुआ, झूठी गवाहियां लगी, अदालत से उसको सजा हो गई। तो लिहाजा झूठी गवाही की वजह से अब वो अंदर बंद है, पीछे बच्चे भी बर्बाद हो गए, उनका मुस्तकबिल भी बर्बाद हो गया। हो सकता है औरत बेचारी किसी गैरों के यहां काम करने जाए, वो अपनी इज्जत भी गंवा बैठे। तो बताएं झूठी गवाही ने माशरे को कितनी तबाहियां दी। ये तो मैंने अभी आपको एक चोर का और एक कत्ल की झूठी गवाही बताई है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। भाई जिना के अंदर अगर झूठी गवाही लग जाए, बेगुनाह को सजा मिल जाए, फिर क्या होगा मेरे दोस्तों? ठीक है ना जी। अगर उसके अंदर जो है वो 8 साल की कैद हो जाए, तो 8 साल तक पीछे उसके बच्चे, या बच्चे ना हो उसके बूढ़े मां बाप हों, क्या उनकी कसमोपोशी का आलम होगा। लेकिन ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? एक बदबख्त की वजह से जिसने झूठी गवाही दी। तो लिहाजा झूठी कसम जो थी वो तो इंसान को सिर्फ खुद को बर्बाद करती थी। अब ये झूठी गवाही जो है तबाही और बर्बादी में उससे बढ़ी हुई है कि उसने झूठी गवाही देने वाले की आखिरत तो बर्बाद की,
उस झूठी गवाही ने माशरे को भी बर्बाद कर दिया, माशरा तबाह हो गया इस झूठी गवाहियां होने की वजह से। और अगर इस कहानी के दूसरे रुख को देखें कि मुजरिम ने जुर्म किया था, ठीक है ना जी, मुजरिम ने जुर्म किया था और गवाही देने वालों ने उसकी बेगुनाही की गवाही दे दी। अब ये भी तो झूठी गवाही ना, अब दूसरे रुख को भी देख लें। तो अब डाकू ने डाका मारा था, उसने उस डकैती के दौरान कत्ल भी किया था, लेकिन अब, और वो आदि डाकू है, और अब झूठी गवाही के सबब उस मुकदमे से उसकी जान छूट गई। तो अब आप क्या ख्याल करते हैं, आया वो उस गुनाह को छोड़ेगा? मैं आप पर फैसला छोड़ता हूं, आया वो उस गुनाह को छोड़ देगा या उस गुनाह में बढ़ेगा? जवाब दें। बढ़ेगा ना, क्योंकि उसको उसके जुर्म की सजा नहीं मिली। जब सजा नहीं मिली थी तो बार बार फिर उसको इर्तिकाब करते करते अब वो आदि मुजरिम हो गया। अब जैसे जैसे झूठी गवाहियां उसको सपोर्ट करती जाएंगी, वो अपने गुनाहों में बढ़ता चला जाएगा, बेदरेग लोगों को कत्ल भी करेगा, लोगों के माल भी छीनेगा, और जनाब मेरे दोस्तों लोगों की इज्जत के लिए भी खतरा बनेगा। तो अब इस झूठी तबाही ने यूं भी मुआशरा बर्बाद किया कि गुनाहगार बेगुनाह को गुनाहगार करार दिलवाया, और यूं भी मुआशरा बर्बाद किया कि गुनाहगार को बेगुनाह करार दिलवाया। तो इसलिए झूठी गवाही की वजह से गुनाहगार बेगुनाह, बेगुनाह गुनाहगार, बिल्कुल उलट हो गया मामला। तो लिहाजा यह मुआशरे की तबाही का बायस बनेगा। इसी तरह से अब चूंकि इलेक्शन है, आप जानते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्शन में भी जो आप वोट देते हैं ना, यह भी गवाही के बराबर है, यह भी मसाइल के लिहाज से गवाही के बराबर है। आपने अगर वोट अपनी मुफाद परस्ती के लिए दे दिया, अपने मुफाद के लिए दे दिया, सबसे पहले याद रखें आपको वोट देते वक्त जो अव्वलीन दो चीजें हैं उनका ख्याल करना है। वो क्या है? सबसे पहले वोट देते वक्त जो ख्याल करना है वो ये करना है कि आपका वोट देने से इस्लाम को फायदा हो। दूसरा ये कि मुल्क पाकिस्तान को फायदा हो। और याद रखें हकीकत में ये दोनों फायदे एक ही हैं। जो इस्लाम का फायदा है वो पाकिस्तान का फायदा है, जो पाकिस्तान का फायदा है वो इस्लाम का फायदा है। तो अगर आपको कोई ऐसा नजर आता है ना कि जो इस्लाम का भी फायदा करे और पाकिस्तान का फायदा भी करे, तो उसके हक में आप गवाही दे सकते हैं। ये गवाही है ये भी। वगरना याद रखें इस हदीस के तहत अगर मैं बयान करूं, इससे तत्बीक और मुशाबहत दूं, तो ये वोट अगर आपने अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर लिया, या अपनी दुनियावी किसी कराबतदारी के लिए इस्तेमाल कर लिया, या बिरादरी की वजह से आपने वोट दे दिया, या जाती ताल्लुक की वजह से वोट दे दिया, इस्लाम और पाकिस्तान के फायदे को मद्देनजर नहीं रखा, तो याद रखें आपने वोट देकर गवाही दी कि जिसे हम वोट दे रहे हैं ये वाकई ही अमानतदार है, इस्लाम का भी फायदा करने वाला और पाकिस्तान का भी फायदा करने वाला। तो लिहाजा आपने गलत वोट दिया तो आप झूठी गवाही के जिम्मे में आ जाएंगे जो गुनाह कबीरा है। ठीक है ना जी। आपको कोई ऐसा नजर नहीं आता वो अलग बात है, ना दें बेशक, लेकिन अगर कोई ऐसा नजर आता तो फिर उसको वोट दें। अगर नजर नहीं आता बेशक ना दें। आपको नजर आता है कोई ऐसा कि जो आप जानते हैं कि इस्लाम का भी फायदा करेगा और पाकिस्तान का भी फायदा करेगा, उसको वोट दें। अपनी जाती मुफादात की वजह से जाती वाबस्तगियां, पार्टी वाबस्तगियां, बिरादरी की वाबस्तगियां, ठीक है ना जी। और हमारे माशरे में तो इतनी जाहिलियत है कि ये लोग आजकल वोट जो मांगते फिर रहे हैं ना, एक देहात में एक बूढ़े बाबे के पास, कोई खानदान का सरपरस्त था, उसके बाद एक कैंडिडेट पहुंचा उसके पास, तो पहले एक आ चुका था, उसके बाद दूसरा आया। तो वो बाबा कहता है जी क्योंकि तुस तुहाडे किनू पहले एक बेआ जड़ा है ना उम्मीदवार थी कि चला गए, लिहाजा पहले वो आया ही, मैं उहदे नाल जुबान कर दी है, हुण मैं तो को वोट नहीं दे सकता। यानी ये जाहिलियत है और कुछ नहीं है। तो लिहाजा वोट किसको देना है और किसको नहीं देना ये मैंने बता दिया। चूंकि मैं सियासी आदमी नहीं हूं तो लिहाजा पार्टियों के नाम ये वो ये मेरी फील्ड नहीं है। मुझे तो हदीस के तहत, क्योंकि हदीस में ये आ गया झूठी गवाही के बारे में, इसी के तहत मैंने आपको बता दिया कि वोट भी बमंजिला गवाही के है और वो आप किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। ठीक है ना जी। तो ये मैंने आपको बता दिया। लिहाजा आज हमने इस हदीस को मुकम्मल कर लिया। इसको दोबारा दोहरा लें कि किन किन
गुनाहों का जिक्र इसमें हुआ है। सबसे पहले फरमाया शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। दूसरा फरमाया वालिदैन की नाफरमानी। तीसरा फरमाया जान का नाहक कत्ल करना। चौथा फरमाया झूठी कसम, और बुखारी और मुस्लिम में झूठी गवाही का जिक्र भी है। लिहाजा इन दोनों को अलग अलग शुमार करें तो टोटल 5 गुनाह बनते हैं, 5 कबीरा गुनाह बनते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है तो हम दूसरी हदीस को भी तिलावत कर लेते हैं और उसमें से भी कुछ ना कुछ बयान कर देते हैं। बाकी जो उसमें से बच जाएगा इंशाअल्लाह अगली मरतबा बयान करेंगे। दुरूद पाक पढ़ें। वअन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअ अल मुबिकात, इज्तनिबुस सबअ अल मुबिकात। क़ालू या रसूलल्लाह वमा हुन्ना, क़ाल शिर्कु बिल्लाही। आगे हो जाए जरा। क़ाल शिर्कु बिल्लाही वस्सिह्रु व क़त्ल नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व अक्लु रिबा व अक्लु माल यतीमी व तवल्ला यौम ज़हफ़ी व क़ज़फ़ुल महसनातिल मोमिनातिल गाफिलात। मुतफ़क्कुन अलैह। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 हलाकत की चीजों से बचो। कितनी? 7 हलाकत की चीजों से बचो। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हलाकत की चीजें क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, यानी अल्लाह का शरीक बनाना, नंबर 1। अब गिनते जाएगा 7 चीजें। फरमाया दूसरा जादू, नाहक किसी जान को हलाक करना जो अल्लाह ने हराम की, और सूद खोरी, और फरमाया यतीम का माल खाना, और फरमाया जिहाद के दिन पीठ दिखाना, और फरमाया पाक दामन मोमिना पर, मोमिना बेखबर पर बुहतान लगाना, यानी जिना की तोहमत लगाना। तो ये 7। अब याद रखें पिछली जो हदीस थी उसमें 5 का जिक्र था, वो भी हलाकत की चीजें हैं। अगली हदीस में 7 का जिक्र आया। तो ये जो 7 हलाकत की चीजें हैं ना, उसूल इसका भी सुन लें, ये भी 7 गुनाहे कबीरा हैं। जैसे पिछले हदीस में 5 का फरमाया, इस हदीस में 7 कबायर गुनाहों का फरमाया, जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। अब जरा इस हदीस को पढ़ने से पहले इस चीज को जान लें कि जो कबीरा गुनाह है उनकी कुल तादाद कितनी है। अगर हम इस हदीस के तहत गुफ्तगू करें, और कई उलमाए किराम इस हदीस के तहत इस तरफ गए हैं कि कबीरा गुनाहों की तादाद टोटल 7 है, कुल तादाद 7 है। और कुछ उलमा हैं जिन्होंने फरमाया कि इसकी तादाद 17 है। कितनी? एक में इस रिवायत में 7। कुछ उलमा का जो मौकिफ है वो फरमाते हैं फुकहा के कबीरा गुनाह 7 हैं, कुछ ने फरमाया कि 17 हैं। इस हदीस के निकात बयान करने से पहले कुल्लुहुम हदीस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ठीक है। पहले 7 फिर कितने? 17। बाजों ने फरमाया 17, और 17 से लेकर बाजों ने मुख्तलिफ तादाद भी बयान की, लेकिन जो आखिरी तादाद ज्यादा से ज्यादा बयान की गई वो 400 तक बयान किए गए कि 400 तक तादाद है कबीरा गुनाहों की। वल्लाहु आलम। एक ने 7, दूसरे बुजुर्गान ने 17, कुछ फुकाहा ने 17 से जायद, लेकिन आखिरी हद 400 तक बयान हुई। हजरत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह यहां पर कुछ बयान फरमाते हैं। फरमाया कि मिरकात में है कि कबीरा गुनाह 17 हैं जो बहुत सख्त हैं, यानी उन्होंने सख्त का अल्फाज फरमाकर यह फरमा दिया कि मेरा मौकिफ भी है कि साहिब मिरकात ने तो 17 बयान किए हैं, मैं ये कहता हूं कि वो ज्यादा सख्त है, उसके अलावा और भी गुनाह कबीरा हैं। इस बात को यूं समझ लें, उन्होंने लिमिट नहीं लगाई इसके ऊपर। फरमाया कि 4
गुनाह दिल के हैं। कितने? 4 गुनाह दिल के हैं, कल्बी गुनाह। फरमाया कि 4 गुनाह जो हैं वो दिल के हैं, 4 गुनाह फरमाया जुबान के हैं, और फरमाया कि 3 गुनाह पेट के हैं, और फरमाया 2 गुनाह हाथ के हैं, और फरमाया 1 गुनाह पांव का है, तो और फरमाया 1 गुनाह सारे बदन का है। अब इन गुनाहों की तरतीब आप सुन लें, इंशाल्लाह जो इस हदीस के निकात होंगे ना वो अगली मर्तबा बयान करेंगे। जो कुल्लुहुम हदीस पर गुफ्तगू है कबीरा के लिहाज से, जो हमारा बाप चल रहा है उसके बारे में सुन लें। फरमाया कि मिरकात में है 17 कबीरा गुनाह जो बहुत सख्त हैं। अब 4 हैं दिल के, उसमें पहला गुनाह है शिर्क और कुफ्र। यह पहला गुनाह है, यानी शिर्क भी कुफ्र भी शिर्क के जिम्रे में है, क्योंकि अल्लाह ताला ना शिर्क को माफ फरमाएगा ना कुफ्र को। लेकिन चूंकि सिर्फ शिर्क का फरमाया माफ ना करने का, लेकिन याद रखें कुफ्र का गुनाह भी इस शिर्क के गुनाह में दाखिल है। यह भी हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। जो लोग अब्दुल आबाद जहन्नुमी होंगे उनमें 2 किस्म के लोग होंगे, एक मुशरिक एक काफर, और इनको एक किस्म भी आप शुमार कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर शिर्क के बारे में फरमाया गया कि ये दायमी जहन्नुम में दाखिले का बायस, और दायमी जो दाखिला है उसको मैंने क्या बताया था आपको? खुलूद जहन्नुम। उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, यानी कि दाखिलून। दाखिलून वो हैं जो बाद में निकाल लिए जाएंगे, लेकिन खालिदून वाले वो हैं जो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। खालिदून खुलूद जहन्नुम का मतलब है हमेशा रहना। तो कुफ्र और शिर्क ये वो गुनाह है, इर्तिदाद भी उसमें शामिल है, यानी इस्लाम लाकर फिर जाना, ये भी तो कुफ्र की किस्म है ना। तो लिहाजा कुफ्र की जुमला इकसाम, मुशरिकों की जुमला इकसाम, वो अगरचे तजसीम के कायल हों, पिछले सबक को भी दोहरा दूं, वो अगरचे तजसीम के कायल हों, वो अगरचे हुलूल के कायल हों, वो अगरचे शाबाश, ये देखें याद है उनको, वो अगरचे इत्तेहाद के कायल हों, और वो अगरचे तस्लीस के कायल हों। तो जुमला किस्म के मुशरिकीन हो, जुमला किस्म के कुफ्फार, दोनों दायमी जहन्नुमी होते हैं। लिहाजा जहन्नुम से इनका निकलना नहीं होगा। लिहाजा ये वो गुनाह है जो सारे गुनाहों से पहले है। तो फरमाया कि 4 दिल के गुनाह हैं। अब आप कहोगे भाई शिर्क का गुनाह तो जाहिरी है, इसको दिल का गुनाह क्यों कहा जाता? इसलिए कि ईमान का ताल्लुक दिल से है, व तस्दीकुम बिल कल्ब, इसका ताल्लुक कल्ब से है। तो लिहाजा बुनियादी तौर पर शिर्क और कुफ्र ये भी दिल के गुनाह हैं। अगर दिल से ये निकल जाते तो दिल में ईमान आ जाता। तो किसका गुनाह हुआ? जिस्म का गुनाह तो है सानवी हैसियत में, अव्वल हैसियत में क्या है? दिल का गुनाह। तो लिहाजा कुफ्र और शिर्क, फरमाया एक गुनाह तो ये दिल का। दूसरा, गुनाह पर अड़ने की नीयत। ऐसे लोग हैं ना जो अड़ के गुनाह करते हैं, मुतवातर गुनाह करते हैं। तो ऐसे लोग भी, ये शिर्क के बाद इसलिए बयान किया कि उसका दर्जा गुनाह का कबीरा में बढ़ा हुआ दर्जा है। एक तो गुनाह कबीरा पर तवातुर, वो उसको बढ़ा देता है। दूसरा जिद पर अड़ना गुनाहों की। अब वो जिद है अल्लाह व रसूल के मुकाबले में, लिहाजा इसमें थोड़ी सी बू कुफर की भी पाई जाती है। जैसे फरमाया गया ना कि मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, हदीस पाक है। फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। अब इसकी तहकीक ही है जिसने दायमी नमाज छोड़ दी। क्यों? कभी तो दिल कर ही जाता है ना नमाज पढ़ने का बेनमाजी का, लेकिन वो जो दायमी छोड़े बैठा है ना, दिल भी करता है फिर भी नहीं पढ़ता, वो दिल से जिद पर कायम है। लिहाजा गुनाह की जिद, ये शिर्क और कुफर के बाद अल्लामा साहब ने दूसरा दिल का गुनाह फरमाया है। गुनाह की यानी शिर्क और कुफर, और दूसरी क्या है बताएं जरा? गुनाह पर अड़ने की नीयत। फिर तीसरा, अल्लाह की रहमत से मायूसी, जिसकी वजह से लोग खुदकुशी करते हैं। ठीक है ना, यह भी दिल का गुनाह है, लेकिन चूंकि इसकी वजह से इंसान की जान जाती रहती है और ईमान इंसान का सिर्फ सूरत कायम रह जाती है, हकीकत खत्म हो जाती है। जो हकीकी ईमानदार हो वो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, और कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूसी दिल का तीसरा बड़ा गुनाह है, और गुनाह कबीरा है। बात समझ रहे? बड़ा गुनाह जिसको कहते हैं गुनाह कबीरा। चौथा, अजाब पर अमन, यानी कि कोई ऐसे काम हो कि जिनसे अजाब आने की तवक्को हो,
उस पर सुकून से बैठ जाना और सुकून से अमल करते रहना, ठीक हो गया। अजाब का खौफ न करना, ये भी दिल का गुनाह है। तो 4 गुनाह हो गए किसके? दिल के। उसके बाद में फरमाया कि 4 गुनाह जुबान के हैं। जुबान के गुनाहों में सबसे पहला गुनाह है झूठी गवाही, जैसे अभी जिक्र किया। दूसरा गुनाह है पाक दामनों पर तोहमत। वो पाक दामन मर्द हो जिस पर औरत तोहमत लगाए, या वो पाक दामन औरत हो जिस पर कोई बदबख्त मर्द तोहमत लगाए, जिना की तोहमत खास तौर पर। तो फरमाया गया ये 4 जुबान के गुनाहों में से दूसरा गुनाह, झूठी गवाही और पाक दामनों पर तोहमत। उसके बाद में जुबान का तीसरा गुनाह झूठी कसम, जिसका बयान हम पिछली हदीस में कराए हैं, सुन लिया ना, याद है ना भाई। उसके बाद में फिर चौथा गुनाह जो जुबान का, वो है जादू, क्योंकि जादू के अंदर जुबान इस्तेमाल होती है, उसे शिरकिया मंत्र पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। तो मंत्र की 2 किस्में हैं, एक वो जो शिरकिया हो जादू के मंत्र, वो तो आगे कुफर और शिरक के जिम्रे में, कल भी गुनाह में। लेकिन वो मंत्र जो शिरकिया अल्फाज में ना हो और लोगों के काम बिगाड़ने के लिए पढ़े जाए, तो लिहाजा वो पढ़ना भी जुबान का गुनाह है। तो 4 चीजें हो गई जुबान की। फिर उसके बाद में फरमाया 3 गुनाह पेट के हैं। पेट के गुनाह कितने? 3। वो 3 गुनाह में पहला गुनाह है यतीम का माल खाना, दूसरा गुनाह है शराब पीना, ठीक है ना, और मेरे दोस्तों तीसरा गुनाह है नाजायज लालच करना। अब उसके बाद में फरमाया 2 शर्मगाह के गुनाह हैं। 2 शर्मगाह के कितने गुनाह हैं? 2 गुनाह हैं। फरमाया 1 लवातत और 1 जिना, ठीक हो गया। ये 2 गुनाह हैं शर्मगाह के। और फरमाया 2 गुनाह हाथ के हैं। वो हाथ के गुनाह हैं चोरी करना और किसी को नाहक कत्ल करना, ये हाथ के गुनाह हैं। फिर फरमाया पांव का गुनाह 1 है, और वो है मैदाने जंग को छोड़कर भाग जाना, ये पांव का गुनाह है। और फरमाया 1 गुनाह सारे बदन का है, ये भी बड़ा शदीद है। सारे बदन का गुनाह फरमाया वो है वालदैन की नाफरमानी, वालदैन की नाफरमानी। अब आपका सवाल पैदा हो सकता है, अजान भी होने वाले, लेकिन इसको मुख्तसर कर दूं मैं, इसको मैं तफसील से समझाना चाहता था लेकिन वक्त नहीं है। वालदैन की नाफरमानी है सारे जिस्म का गुनाह। अब अगर वालदैन ने फरमाया भाई पानी पिला दो, तो अब हाथ इस्तेमाल होना था ना। अब हाथ को फर्मा बरदारी से हटा लिया तो हाथ का गुनाह हुआ ना, हाथ का गुनाह हुआ ना। वालदैन ने कहा कि भाई हमारा कोई सामान जाकर ला दो, कोई जायज काम है। वालदैन ने कहा, नाजायज में तो पैरवी नहीं है ना, पिछली दफा बता देता, जायज में तो जरूरी है ना फर्मा बरदारी। अब जनाब आप ना गए तो अब पैर को गुनाह मिलना चाहिए ना। सवाल यहां पे पैदा होता है भाई ये पूरे जिस्म का गुनाह क्यों है? हालांकि एक गुनाह हाथ का है, एक गुनाह पैर का है, तो हाथ और पैर का गुनाह हो। पूरे जिस्म का गुनाह इसलिए है कि आपकी पूरी बॉडी, पूरा जिस्म, ये वालदैन की देन है आपको। बात समझ में आई? अगर वालदैन जो है उनसे आप पैदा ना होते तो जिस्म ना होता ना। जिस्म बना किन जिस्मों से? वालिद और वालदा के जिस्म से आपका जिस्म बना, लिहाजा उनमें से किसी एक की नाफरमानी भी जिस्म उनमें से निकला आपका। आपका जिस्म उनकी देन है, लिहाजा ये पूरे जिस्म का गुनाह हुआ। फर्माबरदारी नाफरमानी उन्हीं की ना जिन्होंने जिस्म दिया। तो समझ लें कि आपने एक नाफरमानी की तो पूरे जिस्म के साथ की आपने। जिस्म उनकी देन था, जो उन्होंने दिया उसको उनकी फर्माबरदारी में ना लगाया, लिहाजा वो किसी उज़्व का नहीं, किसी एक चीज का नहीं, बल्कि पूरे जिस्म का गुनाह हुआ। ठीक है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये दिल के 4 गुनाह और मेरे दोस्तों जो है जुबान के 4 गुनाह और दीगर जितने भी गुनाह हैं, खास तौर पर वालदैन की नाफरमानी और शिर्क और कुफ्र का गुनाह और गुनाह पर अड़ने की नीयत का गुनाह खास तौर पर, अल्लाह ताला इनसे महफूज व मामून फरमाए और हमें अहादीस पाक को सुनकर इस पर कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।